हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक. Many of you all have given your group 1, so your 4 papers are done. Now only 4 papers are left, and I know that in group 1 few questions were difficult and unexpected, yet there were many questions which are easy and scoring, and I am sure that you are fighters and champions, so you have given your group 1 beautifully. Now your group 1 is done. Yes, it's done. Now it cannot be undone. Even if you go to London, then why to worry about it? So now forget about your group 1 and you have to only focus on your group 2. And many of the students are going to give only group 2. So this SCMP will be your first paper, and I am sure that you all are excited about it. Yet you have a little fear and anxiety for it. इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं. In this video, I am going to share with you last day important tips and some motivation so that you can write your SCMP paper beautifully. So now let's begin with this video. Now, first thing that you need to remember is whenever you give your SCMP paper, SCMP में 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते. The first type of question is fully practical question. Now, whenever you get a fully practical question, it is a scoring question. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर लाना है. But there are 2 important things in this. First, after finding the answer, you need to box the final answer. Don't forget to box it. And second important thing is conclude in 1 or 2 lines. आपको जब भी एक फाइनल आंसर मिलता है, then try and conclude it in 1 or 2 lines. एक्सप्लेन कि ये आंसर कहां अप्लाई हो सकता है या फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है that he not only knows to solve the question but he also knows that when he has solved a question where it can be applied. So conclusion is important. If you have time, write the conclusion in just 1 or 2 lines. Second, you have fully theory question. अभी पूरा थियरी क्वेश्चन आता है तो थियरी एक तो हमें भी बोरिंग लगता है, तो सोचो एग्जामिनर को पढ़ने में कितना बोरिंग लगता होगा. Hence, you have to make your theory question interesting. अभी ये थियरी क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? तो आपको थियरी क्वेश्चन में हेड पॉइंट्स लिखने की ट्राई करनी है. Whenever you have a fully theory question, then you will have head points in that question. समझो टाइप्स किसी के पूछ लिए हैं या फिर बेनिफिट्स पूछ लिए हैं, then write those head points and explain that head points. If your answer is in the head points, in the head point form, and examiner knows that these head points are correct, then he might not read what is inside और head points के बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो अगर fully theory question है तो आपको head points लिखना भूलना नहीं है. And third type of questions will be analytical questions. Now most of the questions will be of this type. What are analytical questions? इसमें theory भी होगा और practical part भी होगा. तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये जो दोनों ऊपर के स्टेप्स है उसे कंबाइन करना है. यानी पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको जो आंसर मिलेगा उसे फिर आपको एक्सप्लेन करना है, उसे आपको इवैल्यूएट करना है. अभी ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले क्या पूछा है ना वो देख लेना है, एंड देन आपका जो फाइनल आंसर आता है उसे इवैल्यूएट करो या फिर एनालाइज करो या फिर जो पूछा है वो हिसाब से आंसर करना है. नाउ मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दैट सर अ लॉट ऑफ वर्ब्स आर यूज्ड इन एससीएमपी, हाउ टू डील विद देम? देन ट्रस्ट मी दैट ऑलमोस्ट दीज वर्ब्स मीन सिमिलर. एग्जाम में व्हेन दे आस्क अ क्वेश्चन, आई एम श्योर दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वो लोग ने क्या पूछा है. इफ दे से दैट इवैल्यूएट अ सिचुएशन, यानी यू नो कि एक सिचुएशन आएगी, एक आंसर आएगा और उसे मुझे इवैल्यूएट करना है कि क्या मैं इसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं. दे वुड हैव गिवन कंपेयर द 2 ऑप्शंस एंड सजेस्ट अस वन. अभी सजेस्ट दिया तो इसका मतलब क्या है कि यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द आंसर्स एज पर दिस 2 सिचुएशंस. नाउ कंपेयर व्हिच वन इज बेटर एंड देन सजेस्ट देम कि उन्हें क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए. तो ये वर्ब से डरने की जरूरत नहीं है. वेदर दे हैव गिवन इवैल्यूएट, एनालाइज, सजेस्ट, रिकमेंड, कुछ भी दिया हो, वो लोग ने जो लिखा है ना वो आपको समझ में आ जाएगा और वो हिसाब से आपको आंसर आपका फ्रेम करना है. तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं. नाउ अनदर फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स. सेकेंड वन इज फर्स्ट रीड व्हाट इज आस्क्ड एंड देन रीड द एंटायर क्वेश्चन. एससीएमपी में अगर आपको टाइम बचाना है तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो whenever you have a theory or analytical question, your question will run in 2 or 3 sides. Now just don't start reading the question first. What you have to see first, जो required वाला पार्ट है ना, what is required, वो 2 or 3 points रहेंगे कि you have to solve this, you have to recommend this, you have to analyze this. First read that. एक बार आपने क्या required है वो पढ़ लिया, that means now you know that exactly where you have to search these points in the question. So first you have to read what is required
एंड देन स्टार्ट रीडिंग योर क्वेश्चन। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तभी बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि क्या रिक्वायर्ड है। इससे क्या होगा, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तभी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पैराग्राफ इससे रिलेटेड है, ये पैराग्राफ सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये पैराग्राफ जो थर्ड वन पूछा है ना उससे रिलेटेड है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप पेपर अच्छे से कंप्लीट करके ज्यादा स्कोर कर पाओगे। सो फर्स्ट रीड व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड देन रीड योर क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट, बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं आज से आपको बोल रहा हूं, मुझे आईसीआई ने बता दिया है कि पेपर लेंथी आने वाला है। आईसीआई के पेपर्स लेंथी ही होते हैं। हमारे अटेम्प्ट में भी लेंथी थे, बाद वाले अटेम्प्ट में भी लेंथी थे और आपके अटेम्प्ट में भी लेंथी आने वाले हैं। वी नो कि आईसीआई लेंथी पेपर ही निकाल रहा है, तो व्हाई नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्टिंग से आपको फास्ट रहना है। यू हैव 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क। 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स है, तो 10 मिनट का, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 18 मिनट्स में कंप्लीट होना ही चाहिए। तो ये जो घड़ी है वो साथ में लेकर जाओ और घड़ी को देख देख के आप अप्लाई क्वेश्चन सॉल्व करो। यू मैनेज योर टाइम ब्यूटीफुली एंड बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट, तो आपका पेपर जरूर खत्म होगा। फोर्थ, start with the question that you know the best. This is very important thing. When you get reading time for 15 minutes, you have to utilize that time perfectly and start with the question you know the best. इससे क्या होता है, अगर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो बहुत ही अच्छा है, वो आपने पूरा करेक्टली लिखा है, देन एग्जामिनर जब ही चेक करता है देन ही गेन्स दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं ये स्टूडेंट को चीजें आती है। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली दैट एग्जामिनर नोज दैट दिस स्टूडेंट इज कॉन्फिडेंट, ही नोज थिंग्स। तो आगे अगर कोई क्वेश्चंस में आपने थोड़ा प्लस माइनस भी किया है तो देयर इज अ टेंडेंसी कि वो आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा दे दे। इसीलिए आपको ऑलवेज जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है उससे ही स्टार्ट करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट, डोंट राइट बिग बिग पैराग्राफ्स, राइट आंसर्स इन पॉइंट वाइज फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर बड़े बड़े पैराग्राफ्स आप लिखते हो, आई हैव सीन सो मेनी पेपर्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो पूरे पेपर में से पैराग्राफ्स लिखते हैं। अभी पैराग्राफ्स हमें पढ़ने पसंद नहीं आते हैं, तो एग्जामिनर को कैसे आएगा, वो तो एक दिन में 100 पेपर करेक्ट करता है। इसीलिए आपको एग्जामिनर के लिए आपका पेपर इंटरेस्टिंग बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, तो आपके जो आंसर्स है उसे पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखो। अगर आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, तो 3 या 4 लाइन का ही एक पैराग्राफ बनाओ। देन स्टार्ट विद अ न्यू पैराग्राफ, अगेन अ पैराग्राफ ऑफ 3 to 4 लाइंस, देन स्टार्ट विद अ न्यू पैराग्राफ। इससे क्या होगा, आपका पेपर एकदम नीट एंड टाइडी दिखेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को फील गुड फीलिंग आएगी, नहीं भाई ये बंदा अच्छा है, ये पेपर अच्छा लिख रहा है, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो आई होप ये सारे आपके ड्यूरिंग द पेपर आपको कौन से टिप्स का ध्यान रखना है ये सब आपको समझ में आ गए हैं। अगर यहां तक आपने देखा है और वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक बटन जरूर हिट करना। अगर आपने ये वीडियो लाइक कर दिया है तो नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ये 1.5 डेज में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट सॉल्व एनी न्यू क्वेश्चंस इन 1.5 डेज। ये 1.5 डेज में कोई भी नया क्वेश्चन नहीं उठाना है, चाहे वो आरटीपी का हो, एमटीपी का हो, केस स्टडी डाइजेस्ट का हो या फिर मॉड्यूल का हो। अगर आपने स्टडी लीव में वो क्वेश्चन नहीं किया है तो नाउ फॉरगेट, अभी वो नया क्वेश्चन मत उठाना, क्योंकि अगर आप नया क्वेश्चन उठाते हो और समझो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट निकला और आपको नहीं समझा और आपने टाइम वेस्ट कर दिया, इसकी वजह से एक तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और साथ में जो आपने पढ़ा है वो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अभी कोई भी नया क्वेश्चन उठाना नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, रिवाइज कॉन्सेप्ट फ्रॉम दी चैप्टर्स क्विकली। इन दिस 1.5 डेज यू हैव टू रिवाइज ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, बट कैसे, क्विकली। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग फुल कॉन्सेप्ट्स। पूरा थियरी अभी नहीं पढ़ना है। बैलेंस स्कोर कार्ड आया, आपको पता है 4 पर्सपेक्टिव है, कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ये 4 पर्सपेक्टिव पता है, मूव नेक्स्ट। अंदर का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऊपर से सब चीजें पता है, दैट्स फाइन। आपको क्या करना है, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करके सीधा मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्लांस करने की ट्राई करनी है। जितने हो सके ना उतने क्वेश्चंस आपको देखने की ट्राई करनी है, क्योंकि सारे चैप्टर्स में भी क्वेश्चन है, केस स्टडी डाइजेस्ट भी है, अगर आपने पहले एमटीपी आरटीपी किया है तो उसके भी क्वेश्चंस है। तो ट्राई करो आप जितने हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस को अपनी आंख से नीचे से निकालो। और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपने मार्क करके रखे, जो आपको सॉल्व करने हैं, तो रफली कैलकुलेटर पे एक बार सॉल्व कर लो, लेकिन पूरा लिखकर सॉल्व करने में अभी टाइम वेस्ट मत करना। तो आई होप ये 2 चीज आपको समझ में आ गई। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट पैनिक एंड ओवरथिंक। आपने 4 पेपर्स दे दिए हैं या फिर आपका ये पहला पेपर है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है देन ट्रस्ट मी, सीए फाइनल में 8 पेपर्स नहीं 9 पेपर होते हैं। 9th पेपर इज योर मेंटल फिटनेस। आप मेंटली कितने काम हो, मेंटली कितने कूल हो, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आप पैनिक नहीं करते हो, आप ओवरथिंक नहीं करते हो, आप एकदम कूल रहते हो, तो आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है।
And why are you panicking and overthinking? What is the reason? Because we are thinking about the results. कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो, अगर एग्जाम में मैं भूल गया तो, अगर मुझे चीजें याद नहीं आई तो, अगर ये चीजें तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है. When things are not in my control, then why should I worry about it? This is the basic fundamental point. If I cannot control anything, then why should I worry about it? इसीलिए ये सारी चीजें भूल जाओ. भगवान आपके साथ है, आपने हार्डवर्क किया है तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा. पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट आने वाला है. आपने पढ़ाई करी है तो सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है, आपको याद आ जाएगा वापस. और अगर पेपर में रिजल्ट्स में कुछ प्लस माइनस होने वाला है तो वो हमारे हाथ में तो है ही नहीं. अगर हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम चिंता क्यों कर रहे हैं? What can we control? What is in our hand? In our hand, it is only to work hard. हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं और वो है हार्ड वर्क. यानी हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं. अभी ये 8 दिन बचे हैं, 4 पेपर 8 दिन. If you give your 110% in this 8 days, then trust me, आने वाले 40-50 डेज आपको सिर्फ एंजॉय करना है, सिर्फ चिल करना है, सिर्फ जलसा करना है. उसके बाद जब रिजल्ट्स आता है तभी देख लेंगे. लेकिन ये 8 डेज है ना, ये 8 डेज हमें वेस्ट नहीं करने हैं. इसमें आपको जितना हो सके उतना सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या है? पढ़ाई. हमें 6 आवर्स सोना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज मत कर रहा. आपका 1 आवर जाएगा ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, वो ठीक है. आपका 1 आवर जाएगा बात करने में और प्रेयर्स करने में, दैट इज फाइन. 8 घंटे गए लेकिन बाकी के 16 घंटे तो है. 16 में से एटलीस्ट 14 to 15 आवर्स यू कैन स्टडी. अगर आप 14-15 आवर्स अच्छे से पढ़ाई करते हो, देन ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग. इवन ICI कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग बिकॉज यू हैव गिवन योर 110%. लेकिन ICI कभी आपको पास करेगा जब भी आप ये 110% देने के लिए रेडी हो. ये सबके साथ होता है. नींद सबको आती है, कंटाला सबको आता है, पढ़ाई करने का मन सबको नहीं होता है, डर सबको लगता है. ये सबके साथ होता है. लेकिन जो बंदा ये सारे इमोशंस के साथ डील करके अच्छे से पढ़ाई कर लेता है और 3 आवर्स में अपना पेपर अच्छे से लिख लेता है तो वो पास हो जाता है. एंड आई एम श्योर दैट आपने यहां तक पढ़ाई करी है तो अभी क्यों गिव अप करना है? अभी क्यों ढील छोड़नी है? अभी तो हमें उल्टा ज्यादा मेहनत करके पेपर में पास होकर अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है. इसीलिए आई एम श्योर कि आप सब बिल्कुल भी पैनिक नहीं करने वाले हो, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करने वाले हो और ये 1.5 डेज जो है 4 पेपर के, वो अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हो. और जब भी आप वो 3 आवर्स का पेपर लिखने जाते हो तो तभी आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, क्योंकि वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो. तो वो 3 आवर्स के पहले जब भी आप पेपर लिखने जाते हो, तभी जो 5-10 मिनट्स बचे हैं, जब भी आपके हाथ में पेपर आने वाला है, तभी आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे मेडिटेट करना चाहिए, कौन से अफर्मेशंस अपने आप को कहने चाहिए, ये सब कुछ मैंने अपने लास्ट वीडियो में, दैट इज वॉच दिस 1 डे बिफोर एग्जाम वाले वीडियो में शेयर किया है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी यहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हो. बट आई एम श्योर दैट आप कोई भी अभी पैनिक नहीं करने वाला है, ओवरथिंक नहीं करने वाला है. आप सब अच्छे से जी जान लगाकर अपना 110% देकर SCMP में 60+ लाने वाले हो और यही अटेम्प्ट में CA बनने वाले हो. अगर आपने ये ठान ली है तो कमेंट करके जाना दैट आई एम गोइंग टू स्कोर 60+ इन SCMP एंड आई एम गोइंग टू बिकम CA जो आपका जो भी नाम है वो वहां पर लिख के जाना, कमेंट्स में लिख कर जाना. आई विल रीड इट एंड आई एम श्योर दैट यू आर श्योरली गोइंग टू डू वेल इन योर अपकमिंग पेपर्स. इसीलिए डोंट पैनिक, डोंट ओवरथिंक, स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम, बी रिलैक्स्ड एंड कीप स्माइलिंग. अगर आप हंसते हो तो आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है. ठीक है, सो डोंट वरी, गिव योर बेस्ट. आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल था, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये वीडियो को लाइक करना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. डू वेल चैंपियंस. बाय बाय.